Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going. Hello students, so very quickly in the previous class we have done some basic things. We have done basically calculations like what amount we will take if there is an absence of partnership deed. Those things we have seen. हमने देखा था salary and all we will take 0, interest on drawings will not be given, profit will be shared equally, interest on loan will be given 6%, correct? So आज जो है today what we will see, today we will see two new things basically. पहले तो हम देखेंगे P&L appropriation account कि वो कैसे बनाते हैं, on what basis it is made, and then we will look into partners capital account, correct? उसके पहले जो है कुछ रिकॉल करते हैं 11th का. In sole proprietorship, if you remember, हम जो है usually like we used to make trading account, correct? Then we used to make P&L account और last में जो हम statement बनाते थे balance sheet. ये तो था sole proprietorship के केस में. But when it comes to partnership, apart from these two account or one statement, ये चीज तो बनता ही है. But after making P&L account, two more account is prepared. The third is profit and loss appropriation account. सर ये क्या है, डिस्कस करेंगे बाद में क्या है. And 1, 2, 3 and the fourth account we make, that is partners capital account. क्लियर है ये? ओके, फर्दर लास्ट में जो है एज यूजुअल हमारा बनेगा बैलेंस शीट. सर ये तो पता है हमको, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, इन दोनों के बारे में बताइए. ओके, तो देखते हैं जरा कि इनके क्या रूल्स हैं, ऑन व्हाट बेसिस दिस इज मेड, एंड बेसिकली उसके अंदर के कंटेंट क्या क्या है, किसके अंदर के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के. सो बिफोर वी बिगिन, क्वाइट ऑब्वियसली कि अगर इफ इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, देयर आर सर्टेन एडिशनल थिंग्स जो कि अकाउंटिंग में हमको देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन sole proprietorship, correct? Sir, different things such as what? If you look into this partnership, there are contents such as new contents, मतलब जो हमने पहले नहीं किया है, that is the interest on drawings, जो partners withdrawal कर रहे हैं, interest on capital, if salary is given to partners, if commission is given to partners. तो यहां पे जो है इन सब चीजों को लिखने के लिए जो है we need certain accounting, करेक्ट? मतलब सर्टेन अकाउंट वी नीड जहां पे इन सब चीजों को हम लिख सकते हैं, बिकॉज अदर थिंग्स सच एज जो बेसिक सैलरी वी पे टू अवर एम्प्लॉइज एंड अदर लीगल फीस एंड एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस विच इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट वो हम लिखते थे P&L अकाउंट में. अब यहां पे जो है लुकिंग डायरेक्टली इनटू P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, क्या चीजें देखते हैं जरा उस पर. सी फॉर्मेट जो है वो तो एज यूजुअल वही रहेगा जो हमारा P&L अकाउंट का था, करेक्ट? कुछ चीजें अंदर की जो है ना वो थोड़ी सी जो है डिफरेंट रहेंगी इफ यू लुक इनटू दिस. अभी यहां पे जो है रिगार्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें कुछ चीजें देखते हैं जरा कि कैसे क्या बन रहा है यहां पे. फर्स्ट ऑफ ऑल P&L appropriation जो है it is just like profit and loss account, but the only difference in P&L appropriation and P&L account you can say is that when we make P&L appropriation account, we basically P&L account when we make, we charge all the expenses against profit, but when it comes to P&L appropriation account, you know, it indicates basically distribution of net profit to like you can say to various heads. सर मतलब क्या है? मतलब जो है in P&L appropriation if you look इस अकाउंट में, first of all this account is made from firm's point of view, मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है. या मान लो फर्म बना रही है, इसमें जो है रूल अप्लाई होता है किसका, नॉमिनल अकाउंट का. सर मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. और इससे भी अगर सिंपल वे में इफ आई से दैट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपल में है कि पार्टनर के रिगार्डिंग
पार्टनर के रिगार्डिंग जितने एक्सपेंसेस है यहां लिखो, पार्टनर के थ्रू हुआ इनकम यहां पे लिखो, सिंपल है। ये बनेगा किसके बाद? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वाइट ऑब्वियस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वी विल गेट ईदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कंसिडर करते हैं इट इज नेट प्रॉफिट, ये तो उसके बाद ही मतलब उसका कंटिन्यूएशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। सो द फर्स्ट थिंग वी विल राइट इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो पहली चीज वी आर गोइंग टू राइट इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वुड बी बाय नेट प्रॉफिट। सर ये कहां से आया? क्वाइट ऑब्वियस, इसके ऊपर हमने क्या बनाया था? P&L अकाउंट, इधर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, हमने कंसीडर किया दैट इट इज नेट प्रॉफिट, तो हमने यहां पे लिख दिया नेट प्रॉफिट। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां लिख दो। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा रूल अप्लाई होगा? नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। और दूसरी चीज ये याद रखना दैट दिस इज प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली, मतलब पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को हमको लिखना है। ओके अच्छा, इफ आई आस्क यू, आपको अगर वो याद होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो एग्जांपल मैंने दिया था, दैट पार्टनर हैज विड्रॉल सर्टेन अमाउंट, 1 लाख विड्रॉल किया उन्होंने, एंड देन लेटर ऑन डीड में मेंशन दैट व्हाइल कीपिंग द अमाउंट यू हैव टू कीप 10%. So he used that amount for a year and then later on while keeping he kept 10,000 additional. तो फर्म के लिए क्या वो एक्सपेंस है? सर फिर से बोलिए, पार्टनर हैज विड्रॉल 1 lakh and as a drawings and while keeping back that amount he kept 1,10,000. So फर्म के लिए क्या है 10,000? वाइट ऑफ से इनकम है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ इनकम। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम नहीं था, बिकॉज दैट 1 lakh was exactly what you took and now you are keeping 1,10,000, so that 10,000 is a income for the firm. तो कहां पे जाएगा सर? क्रेडिट में। क्यों? बिकॉज हम नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर रहे हैं और यहां पे जो है रिमेंबर इन P&L अप्रोप्रिएशन एक्सक्लूसिवली अमाउंट विल कम रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली। सो यहां पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मान लेते 2 पार्टनर से विड्रॉल किया है एंड बोथ द पार्टनर्स आर कीपिंग सर्टेन अमाउंट, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, जो भी अमाउंट है जस्ट मेंशन हियर, टोटल करके जो है वी आर गोइंग टू मेंशन हियर। क्लियर है? हमने क्या लिखा? द फर्स्ट नेट प्रॉफिट विच वी रिसीव फ्रॉम P&L अकाउंट एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। करेक्ट? बिकॉज फर्म के पॉइंट ऑफ देखें दिस इज अ इनकम। सर पार्टनर के पॉइंट ऑफ से क्या होगा? क्वाइट ऑब्वियस है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ से क्या होगा? पार्टनर के लिए क्या होगा? ये एक एक्सपेंस होगा। करेक्ट? ठीक है। इन 99% केस, 99% क्या बोलो आप, थ्रू आउट द चैप्टर यू विल डू, आपको कहीं पे भी जो है क्रेडिट साइड में इन दोनों चीजें को कुछ भी नहीं मिलेगा। ओनली दीज 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन P&L अप्रोप्रिएशन। अब आते हैं क्रेडिट डेबिट साइड में। रिमेंबर हम बना रहे हैं इसको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको फर्म बना रही है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है, तो और रूल अप्लाई कर रहे हैं नॉमिनल का। पार्टनर के रिगार्डिंग ही चीजें इसमें आएंगी। सो ऑन द डेबिट साइड क्या क्या चीजें आएंगी? नाउ इफ आई आस्क यू सर्टेन थिंग्स, एक बार एक एक करके देखते हैं, या ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर्स को क्वाइट ऑब्वियस है, कमीशन गिवन टू पार्टनर्स, बोनस गिवन टू पार्टनर्स, ये सब चीजें। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर प्रॉफिट फर्म हैज अर्नड, ये सारी चीजें जो हैं if I ask you, और लास्ट वाला अगर पार्ट निकाल दें, if I only talk about interest on capital, salary given to partners, bonus given to partners, commission given to partners, if these things if I ask you, ये सब चीजें फर्म के लिए क्या है सर? मतलब either it is a expense or it is a income for the firm. Quite obviously your answer would be it is a expense for the firm. फर्म के लिए तो हेडेक है, फर्म को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर डीड में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो ही तो हम बात कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट है ये तो, कि अगर मेंशन है तो देन ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ इट इज मेंशन इन द डीड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी वी हैव टू गिव, कमीशन वी हैव टू गिव, बोनस वी हैव टू गिव, एवरीथिंग इज मेंशन इन द डीड, तो देना तो है ही। तो फर्म के लिए जो है व्हाट इज दिस? इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, इट इज अ काइंड ऑफ हेडेक फॉर द फर्म, वो देना ही पड़ेगा फर्म को। एक्सपेंस है बिल्कुल, तो कहां लिखेंगे? ऑन द डेबिट साइड। क्लियर रखना, फर्म दे रहा है किसको? पार्टनर को दे रहा है। इट इज अ एक्सपेंस फॉर द फर्म, सो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर कैसे लिखा जाएगा? देखते हैं जरा ध्यान से। यहां पे पहले मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट? मान लेते हैं बोथ द पार्टनर्स, ओके, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, वॉट एवर
कैपिटल दे ब्रॉट 10%, 20% जो भी इसमें इंटरेस्ट लगाना है जस्ट कैलकुलेट और टोटल करके जो है यहाँ पे लिख दो, इन दोनों का टोटल वहां पे है ना। मान लो 10,000 है तो यहाँ पे आएगा 20,000 टोटल करके, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं टू सैलरी। मान लेते सैलरी इज टू बी गिवन एज पर द डीड, सैलरी इज टू बी गिवन ओनली टू पार्टनर ए, करेक्ट। सो वॉट एवर सैलरी इज गिवन जस्ट रिकॉर्ड कर दो, यहां पे लिख दो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई डिस्कस्ड इन टू कमीशन भी हो सकता है। सर किसको कमीशन? मान लेते हैं बी को, ए को, वॉट एवर द क्वेश्चन में भी, यहां पे हमने लिखा एंड द टोटल कमीशन वी हैव रिटन हियर, करेक्ट। सर अब क्या करें? सर बोनस जान देते हैं, मान लेते दिया है नहीं दिया डिपेंड्स अपॉन, बट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि सर वेन एवर एक्सपेंसेस आर पेड टू द पार्टनर्स, फॉर्म के लिए तो एक्सपेंस है, पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, करेक्ट। किधर लिखेंगे? ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन। इसलिए मैंने शुरू में बोला था P&L अप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ऑन द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट की डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। आई होप क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? कंसिडरिंग हियर इट इज 10 लाख, हियर इट इज 1 लाख ले लो, टोटल हो जाएगा 11 लाख इनकम, क्रेडिट साइड है, इनकम 11 लाख। यहां पे मान लेते हैं 50,000, 25,000, 25,000, 50, 25, 25, 1 लाख हो गया। यहां पे था 11 लाख, यहां पे आया 1 लाख। सो इनकम इज 11 लाख, एक्सपेंसेस आर 1 लाख। इनकम 11 लाख है, एक्सपेंसेस 1 लाख है, कितना रह गया? 10 लाख। 10 लाख सारे एक्सपेंसेस सब कुछ देने के बाद, बिकॉज P&L में भी यू हैव गिवन एक्सपेंसेस, हियर यू हैव गिवन, हियर यू हैव पेड टू द पार्टनर्स, सो रिमेनिंग 10 लाख दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। सो पार्टनर्स को मिलेगा, बिल्कुल। कौन देगा? फॉर्म देगा। सो हियर वी विल राइट टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, करेक्ट। दो पार्टनर्स है, यस, पार्टनर ए एंड बी। सर बट यू नेवर मेंशन व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेशियो दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इन व्हाट रेशियो इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने तो मेंशन ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो? किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर क्वाइट ऑब्वियस है, 1:1 में, या बोलूं इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में। क्लियर है? सो आई होप आपको जो है क्लियर होगा व्हाट इज लाइक इन व्हाट वे P&L अप्रोप्रिएशन इज मेड। अगेन याद रखना, दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये यहां पे जो है एक्सक्लूसिवली ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिटन। कंडीशन अप्लाई। सर कौन सी कंडीशन? अभी तो आपने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कंडीशन सच एज, दो चीजें जो इसमें नहीं जाएंगी। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इफ पार्टनर एल, जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, एल हैज गिवन सर्टेन लोन, आपको याद होगा कि एल ने लोन दिया था फर्म को, एंड देन एज पर द रूल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आपने कहीं पे कुछ भी नहीं मेंशन किया तो 6% इंटरेस्ट इज टू बी टेकन ऑन दी, इज टू बी गिवन ऑन द लोन टू द पार्टनर। अगर पार्टनर को लोन रिटर्न कर रहे हो, इफ इज आस्किंग द इंटरेस्ट, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था 6% वाला केस। सो फर्म इज गिविंग 6% इंटरेस्ट टू पार्टनर, बट यहां पे जो है इफ यू रिमेंबर, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो इंटरेस्ट है, पार्टनर का जो लोन, उस पर जो इंटरेस्ट दे रही है फर्म के लिए, इट इज एन एक्सपेंस। सो बेसिकली व्हाट स्टूडेंट्स डू ना, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर, वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो वो क्या करते हैं ना, लिख देते हैं उसको P&L अप्रोप्रिएशन में, बट वो गलत है। सर क्यों? बिकॉज लोन एक्वायर्ड फ्रॉम द पार्टनर इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, और वो जो है ना P&L अप्रोप्रिएशन में से नहीं दिया जाता, इट इज गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट। सर मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर, उस पे जो इंटरेस्ट जा रहा है, दैट एक्सपेंस इज नॉट टू बी रिटर्न इन P&L अप्रोप्रिएशन, बट वो लिखा जाएगा P&L अकाउंट में। याद रखना क्या, यहां पे जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स को आप देने वाले हो वो नहीं रिकॉर्ड करना, बिकॉज बेसिक माइंड तो ये कहता है कि यार इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है पार्टनर के लिए, तो हम क्या करते हैं ना, तुरंत यहां लिख देते हैं, बट वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इट इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए जो है इट विल नॉट बी मेंशन्ड हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखना, दूसरा रेंट याद रखना। रेंट भी जो है, अगर फर्म मान लो जो है फर्म को अ पार्टनर हैज गिवन सर्टेन प्लॉट, यूज दिस प्लॉट, आई एम गिविंग यू एंड गिव मी सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट एवरी मंथ, तो फर्म दिए जा रहा रेंट,
तो ये जो एक्सपेंस है इवन दिस इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए वो भी यहां पे नहीं लिखा जाएगा. टू थिंग्स विल नॉट बी रिटर्न हियर इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस. कौन सी दो चीज? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड फिर आएगा आपका रेंट. कीप इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप आपका जो है कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन बहुत क्लियर होगा. क्या कि यहां पे जो है यू हैव टू मेक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फर्म्स पॉइंट. सर आप बार बार क्यों बोल रहे हो फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू? बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल बताऊंगा ना, वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या हो रहा है अब यहाँ पे. इसलिए याद रखना ये जो बनाया जाएगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम. आई होप यू आर क्लियर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. In the next class, I'll start with partners capital. एक बार जो है just go through this. If you want, you can make this format. It would be easy for you. So just clear these concepts. So next class में आपको partners capital account जो है एक बार मैं clear कर दूंगा. तो आपको जो है basic जो accounting है इसका जो है clear हो जाएगा. And then we'll move further. Okay. So thank you students.